Good morning to all of you. Myself, Dr. Vivek Kumar, as Professor Solutions. Now I'm going to decode the academic side of BCG part first, Fundamentals of Solutions. I'm covering the 14th exercise of practical course. The title of the course is Determination of electrical conductivity of soil. Determination of electrical conductivity of soil. देखिए इस जो निकालते हैं सोल की इसमें क्या है कि एज द starts increase the resistance to the flow of current is decrease. This is the principle. Now, as we know, as per Ohm's law state that explain that the resistance is the ratio of the volt upon current, volt upon ampere. This is the resistance, and which is measured in ohms. Now the conductivity is the reverse of ohm. R है आपका resistance, उसका उल्टा होता है reverse, यानी 1 upon R. हमने लिखा ohm, अब ohm का उल्टा लिखेंगे NHO moles. So this is the unit of conductance. Nowadays, the recent unit of the conductivity is decisimus per meter. Decisimus per meter instead of moles. यहाँ पे नई इकाई है मोल पहले से आज लिखा गया decisimus per meter. Small d, capital S, small a minus 1. Decisimus per meter at 25 degree Celsius. अब देखिए how it is done in the laboratory. इसमें हम क्या करते हैं कि जिसमें जो 3 apparatus ये है सबसे पहले आपका AC मीटर with known cell constant value, उसके बाद में vacuum pump, then beaker, lead, then soil sample, then spatula, then distilled water. These are the materials that are required in the determination of the EC. And your large size channels. इसमें दो तरह के हैं निकालने के EC के. इसमें before starting the analysis of EC of soil, जो उसमें काम आता है reagent, वो भी दो तरह के होते हैं. Number 1, N/100 KCl solution. हम क्या करते हैं 0.7456 gram of KCl of AR grade. KCl of AR means analytical reagent, which is more accurate. This amount of KCl, that is 0.7456 gram KCl of AR grade, is weighed and it is dissolved in water, and volume is made up to 1 liter. ये जो आपका बनेगा सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की EC आती है 1.41. This solution will give the EC of 1.41 decisimus per meter. Now, this solution used for normal soils, means which are normal in nature, don't have saline or acidic or alkaline. Yeah. So this solution is used for the normal soils. In case of saline and alkaline soils, we prepare the reagent by dissolving the gypsum in the water up to saturation. हम क्या करते हैं 5 ग्राम लेते हैं gypsum and dissolve in water तब तक कि वो पूरा घुल जाए ना, और वॉल्यूम मेड अप टू 1 liter. जैसे वो घुल जाए जरूरी नहीं it should be dissolved. The saturated solution of gypsum is 5 gram solution in 1 liter of water. हम इसको ऐसे निकालते हैं तो उसको ऐसे आएगा 2.2 decisimus per meter. So this kind of reagent is used for determining the soils which are saline in nature or alkaline in nature or acidic in nature. Now, how to start the laboratory? First of all,
We have to start the equipment half an hour before the termination. आधा घंटे पहले हम इक्विपमेंट को ऑन कर देते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड जो हमारा सॉल्यूशन है, अच्छा लगा आपको, we will standardize our equipment with a known value of your issue, that is environmental KCl solution or आपका saturated solution of gypsum। अगर आपने environmental KCl solution लिया है तो उसका इसे आएगा 1.4। अब ये जो है ये वेल नोन है कि जो भी आप बनाएंगे सॉल्यूशन KCl का, एयर ग्रेड का KCl का, by taking the amount of KCl 0.7456 gram during the liter of water, it will give the EC of 1.45। मगर इन प्रैक्टिस अगर इतना आपको आ गया वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इससे कम आ रहा है इसी या अधिक आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो फार्मूला अगर निकालने का सेल कॉन्स्टेंट बराबर होता है आपका एक्चुअल कंडक्टिविटी ऑफ दी एनवायरमेंट केसेस सॉल्यूशन दैट इज 1.41 अपॉन ऑब्जर्व कंडक्टिविटी ऑफ दी केसेस सॉल्यूशन जो हमने जो बना के किया है। और मान लीजिए अगर आपका 1.41 से कम आ रहा है या अधिक आ रहा है, जो भी आ रहा है, आप उसका एक्चुअल भाग दे दीजिए। जो भी भाग खोलाएगा दैट इज योर सेल कॉन्स्टेंट। सिमिलरली in case of different solution which is saturated, that is used for saline electrolysis, the same is the same procedure। हम उसमें भी सेल कॉन्स्टेंट नहीं निकालते हैं। तो ये सेल कॉन्स्टेंट निकालने का तरीका होता है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि दो तरीके निकालने के इच्छुक के। पहला है आपका विद रेस्ट टू सॉइल वाटर सस्पेंशन। हम क्या करेंगे कि एक भाग मिट्टी, दो भाग से वाटर, है ना, पानी की रहते हैं। इसके लिए 40 ग्राम सोल लेते हैं, जो भी आपका एरिडाइड है, जो 2 mm से छनी हुई हो, है ना, उसको हम 20 ग्राम तोल करके 100 ml के बेकर जो कोल्ड का है या बोरेसल का है आप उसमें डाल दो। उसके बाद में बाय यूजिंग द मेजरिंग स्टैंडर्ड यू विल ऐड 40 ml टू वाटर एंड इट विल एडेड इन दी सॉइल सैंपल। जो आपका हमने बेकर लिया उसमें आपने 20 ग्राम सोल डाली, उसके बाद में तोड़ करके उसके बाद में 40 ml आपने जो वाटर मेजर करके डाल दिया। उसके बाद में ग्लास रोड आप लीजिए साफ सुथरी, वाटर साफ करके आपको खिलाइए इंटरमीडिएट सेकिंग फॉर हाफ एन आवर। आपको आधा घंटे तक उसको बार बार उसको हिलाते रहिए सॉइल और वाटर के मिक्सर को। उसके बाद में जो आपका जो आपने पहले आधा घंटा पहले ऑन किया था उसको पेंट किसी का, उसका जो है आप पहले आप निकालिए उसका आप कंडेंस कीजिए बाय यूजिंग आइदर एनवायरमेंटल केसेस सॉल्यूशन और बाय यूजिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ जिप्सम। इज द केस में अगर आपकी सॉइल नॉर्मल है वी विल यूज एनवायरमेंटल केसेस सॉल्यूशन। अगर आपकी सॉइल नॉर्मल नहीं है, सलाइन है, अल्कली है, इन दैट केस यू विल यूज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ जिप्सम। That is 5 gram gypsum dissolved in 1 liter of water will give the AC of 2.2. In case of another KCl solution, by dissolving 0.745 gram KCl of air grade, it will give the AC of 1.41. तो हम इसको प्रेशराइज करते हैं। उसके बाद में जो आपका सॉइल सैंपल है हम उसको बाद में फीड करते हैं। अब आप इलेक्ट्रोड है, आप उस इलेक्ट्रोड को जो आपने जो 20 ग्राम मिट्टी ली, 40 में पानी लिया, आधे घंटे उसको हिलाया, उसके बाद में आप इलेक्ट्रोड उसमें डिप कीजिए। अब डिप आपने किया, डिप करने के बाद में आपका क्या रीडिंग आ रहा है किसी का, दैट वी हैव टू नोट डाउन इन आवर रिपोर्ट, इन आवर रजिस्टर, इन आवर कॉपी। उसके बाद में जो आपका सेल कॉन्स्टेंट आ रहा है आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो EC values shown on the EC-meter multiplied by your cell constant, ये आपका EC देगा। अब इसमें इसका क्लासिफिकेशन अलग से, इसमें क्या है कि अगर आपने 1:2 वाला लिया है, यानी 1 भाग मिट्टी 2 भाग पानी लिया है, तो उसका जो उसका क्लासिफिकेशन है, इसका जो रेटिंग है इसका वो ऐसा है कि हमने इसको किया है, ऊपर लिखा है आपका EC, हम इसे EC2 कहते हैं, कैपिटल E कैपिटल C इनटू 2, इट मींस 1:2 सॉइल वाटर सस्पेंशन, 1:2 मिट्टी और जल का विलयन, है ना। अब इसमें
कैसे सॉइल होगी, व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉइल। अगर हमारी इसी वैल्यू लेस देन 0.8 आती है डेसिमल पर मीटर, if the value of EC meter comes about less than 0.8 decimal per meter, you may call that the soil is normal. या आपकी soil normal है, कोई दिक्कत नहीं है. We need not to add any kind of amendment. Soil is fit for all crops. अगर वैल्यू आपके 0.8 से 1.6 आती है, इसी वैल्यू इसके बीच में आती है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज क्रिटिकल फॉर साल्ट सेंसिटिव क्रॉप्स. ये जो साल्ट सेंसिटिव क्रॉप्स है उसके लिए ये थोड़ा क्रिटिकल है, तो उसको देखना पड़ेगा. थर्ड है आपका, अगर आपकी वैल्यू आती है 1.6 से 2.5, तो इसमें हम कह सकते हैं कि हम इसमें साल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स को हमको उगानी चाहिए. ग्रो साल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स if the value which comes in the range of 1.6 to 2.5. एंड लास्ट में है आपका, अगर इसी वैल्यू अगर आपकी 2.5 से अधिक होती है ना, तो उस केस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये जो इश्यू है इट इज इंजूरियस टू ऑल क्रॉप्स. ये पौधे के लिए सही नहीं है, पौधे जला देगी ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ साल्ट्स. तो ये आपका गया 1:2 का निकालने का तरीका. दूसरा एक और है, वो है आपका ECE, कैपिटल E, कैपिटल C और स्मॉल e. हम से कहते हैं सैचुरेशन एक्सट्रैक्ट. वो कैसे बनाते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, लार्ज साइज डिश लेते हैं आपका चाइना डिश, उसके अंदर करीब 250 ग्राम सॉइल छनी हुई हम डालते हैं, और उसके अंदर हम डालते हैं डिस्टिल्ड वाटर, और उस सॉइल को डिस्टिल्ड वाटर से मिक्स करते हैं बाय यूजिंग स्पैचुला. अब देखिए इसका तरीका ये है कि आप जो सॉइल का जो होती है पोरोसिटी, फॉर एग्जाम्पल फॉर ए कॉमन मैन हम मानते हैं कि 40% पोरोसिटी है सॉइल. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 ग्राम सॉइल है ना, तो उसमें 40 ग्राम पानी है या 40 ml पानी है. और जब पानी जो गिरेगा सॉइल के अंदर, तो वो गिरेगा पोर्स के अंदर, तो छिद्र है ना, उसमें गिरेगा. तो सॉइल की अगर पोरोसिटी 40% है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 ग्राम सॉइल है तो आपका 40 ml पानी है, ये मान लीजिए. अब देखिए हमने क्या किया, सॉइल लिया, फिर 250 ग्राम ले लिया, पानी ऐड किया उसके अंदर, है ना. तो उसके साथ पानी ऐड कितना होगा, 40 80 120 ml पानी ऐड होगा. इसमें 250 ग्राम में, है ना. तो यहाँ क्या है, पहले वाले में 20 ग्राम में हो रहा है 40 ग्राम 40 ml, डबल. यहाँ डबल नहीं हो रहा है, यहाँ तो आपका मतलब 2.5 गुना कम पानी ऐड हो रहा है. हम क्या करते हैं, दिसंबर है आपको 250 ग्राम मिट्टी लिया, पानी डाला और इसको मिक्सिंग किया. मिक्सिंग के दौरान ये देखते हैं कि सॉइल के पार्टिकल्स हैं, दे आर फिल्ड विद वाटर, है ना. आप मिक्सिंग कीजिए, मिक्सिंग के दौरान आपका जो अपर लेयर है, आपको जैसे आप ये आपकी ये डिश है, मान लीजिए डिश है, आपने मिट्टी डाली और आपने पानी ऐड किया, तो थोड़ा सा मिक्सिंग किया, है ना. उसके बाद में आप देखिए कि पानी ऊपर नहीं रहना चाहिए सॉइल सतह के ऊपर. आप टेपिंग की साइड से लेवल कीजिए, मिक्सिंग कीजिए, फिर लेवल कीजिए, तो अपर लेयर जो है इट्स रिलेशन शाइनिंग आनी चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, after thorough mixing soil with water, the water should not flow over the surface. पानी ऊपर नहीं बना चाहिए. दूसरा पॉइंट है, पहला शाइनिंग होनी चाहिए, दूसरा पानी ऊपर नहीं बना चाहिए, और थर्ड आप इसके सोलह से आप वी आकार का कट लगाइए, अंग्रेजी का वी आकार का वी शेप कट मारिए. तो वी शेप कट मारने क्या होगा कि वी शेप कट देने से सॉइल कट जाएगी. अब आप उस डिश को आप टेपिंग कीजिए बाहर से, आउटसाइड से 15 से 20 बार. तो उससे क्या होगा कि दोनों एंड जो आपने जो बनाया ना ग्रुप, वो ग्रुप मिल जाएगा. ग्रुप विल डिसअपियर थ्रू टेपिंग्स. एक इसका तरीका ये है जज करने का. और लास्ट में फोर्थ पॉइंट जो है जजमेंट का, वो ये है कि आपकी डिश है, आपका सॉइल मास है इसमें गीला, आप इसमें थोड़ा से आप इसको लीजिए, सॉइल मास को ऊपर लेकर के आपको गिराइए, है ना. तो पूरा जो सॉइल मास है
इट शुड फॉल इन दिस फॉर्म ऑफ क्लाउड। एक क्या रूप में पूरा पूरा सॉइल मास उसमें इसमें आना चाहिए, और स्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी सॉइल पार्टिकल नहीं रहना चाहिए, ढेर नहीं रहना चाहिए। तो इसके तीन चार तरीके इसके निकालने के, जजमेंट करने के लेबोरेटरी। अब देखिए हमने ये बना दिया पेस्ट, और आप पेस्ट निकालना पीएच, तो आप लिक्विड जो है आप पेस्ट में डिप कीजिए, हम इसको कहते हैं पीएचएस। अगर आपको 1:2 में निकालना है तो हम कहते हैं पीएच2, है ना। जैसे है ना EC2, तो आपका EC2 हो गया। अगर आपका EC निकालना है तो आपका पेस्ट जो आपको बनाया ना, उस पेस्ट को हम क्या कहते हैं, बक्टर फनल। इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक और जो चाइना क्ले, ये कप टाइप होता है, छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं। आप उसके अंदर जो है पेंटेबल लगाइए ऑर्डिनरी, अब जो पूरा पूरा सॉइल जो पेस्ट है आप उसमें ट्रांसफर कीजिए, है ना। ये फनल होता है फनल, और नीचे उसमें आप टेस्ट ट्यूब लगाइए, फिर उस टेस्ट ट्यूब को ऊपर कॉर्क होता है उसमें फनल में, आप उसको एक कॉन्टिनेंटल फ्लास्क होता है, आप रिपीट कीजिए। और कॉन्टिनेंटल फ्लास्क में एक आउटलेट होता है, उसमें ट्यूब लगी होती है, जो आपका वैक्यूम पंप की कनेक्टेड है। मैं आपको बताऊँ डायग्राम, ऐसा डायग्राम होता है उसका। डायग्राम इसका एक सिंपल था, है ना। ये आपका डायग्राम होता है। इसके अंदर आप देखिए कि ये आपका वैक्यूम पंप है, ये जिसकी 2 व्हील है, ये इसका टेल वेट है ना। और ये इसका इलेक्ट्रिक प्लग है ना। और ये इसमें ये पाइप है, ये ट्यूब नहीं मेटल की, यहाँ से आगे पाइप हो रहा है। इस पाइप में ये इसमें नोजल है, और ये आपका जो कांच का होता है, और ये इसमें ये अपना फनल है, और यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बांध देते हैं धागे से, और एक कॉर्क होता है फिट कर देते हैं, और ये तो उसका जो है ना नोजल, और द पोस्ट में हम ट्यूब फिट कर देते हैं। और ये जो पाइप का जिस तरह से ये 2 3 4 5 तरह होते हैं, और लागत पाइप वहां से बंद कर देते हैं। अब बंद करेंगे उसके बाद आज ऑन कीजिए वैक्यूम पंप को, ड्यू टू सक्शन ये जो टेक्सचर है इसके अंदर ये आपका एक्टिव इसका निचोड़ जो है, इसका जो एक्टिव है भी करके मिलते हैं, है ना। हम इससे कहते हैं सैचुरेशन एक्टिव। अब जो ये एक्टिव है ये करीब आने से करीब 20% में आना चाहिए। उसके बाद में इस एक्टिव का आप निकालिए, वो होगा आपका ECB। इसका अलग रेटिंग होता है का। तो ये होता है कि अगर आप EC लेस देन 2 है, हम कहेंगे संगठित इफेक्ट्स आर नेग्लिजिबल, है ना। अगर आपका EC बिल्कुल 4 बीच में है, हम कह सकते हैं कि जो सेंसिटिव क्रॉप की यील्ड है इट विल बी रिड्यूस्ड। अगर आपकी EC बिल्कुल 4 से 8 है ना, तो हम क्या कहते हैं कि कई क्रॉप की यील्ड इसमें रिड्यूस हो जाएगी। और अगर 8 से 16 है, हम कहेंगे कि टोटल क्रॉप कैन बी ग्रोन to achieve the satisfactory level of yield potential। अगर आपका EC का वैल्यू मॉडल 16 है, 16 से ऊपर है, तो उसमें टोटल क्रॉप कैन बी ग्रोन। तो आप देखिए कितना फर्क है 1:2 में, जो EC2 है EC में। EC2 में हम लेते हैं 2 भाग पानी, 20 ग्राम सॉइल 40 ml वाटर। इसके अंदर मान लीजिए ग्राम 100 ग्राम सॉइल लिए फॉर एग्जाम्पल, तो पानी आएगा आपका 40 ml। तो 2.5 टाइम्स what is reduced, है ना। और ये जो आपका आएगा ये मोर परसेंट है, दैट्स व्हाई द EC will increase। So this is all about the determination of electroconductivity of soil। Thank you। डॉक्टर तो मेरा आईडी नहीं हो रहा, ओपन नहीं हो रहा आईडी बन जाएगा सर। आपके पास आईडी है सामने, आईडी है कंप्लीट करिए आपने। क्या कह रहे हो, वो आए नहीं सर, वो क्या नाम है उनका, चलो ठीक है ना। आपको ये फेस टू फेस वाला टाइम मिलेगा, आपको सब्जेक्ट आप सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपके पास है, टीचर का नाम पता तो लिखो, ठीक है। सब लोगों का मालूम होता है मंडे आते हैं, फ्राइडे और सैटरडे आते हैं दोनों, सॉइल साइंस एंड एग्रोनॉमी पूरा मोस्टली
वो सब आते हैं वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सीआरपी का है फ्राइडे संडे सोम शुक्र शनि ठीक है हॉर्टिकल्चर का हम दोनों का मंडे टू फ्राइडे और मैं जगह से छोटा रिकॉर्डिंग कर लो हाँ आप फोटो भी ले लो